Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karunesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we will revise the first chapter of economics, that is the story of village Palampur. Okay dear students, so let's start with an introduction. Or first of all, I would like to give an overview to all of you of these chapters. So dear students, the purpose of teaching this story, the story of village Palampur, is to introduce all of you with some basic concept relating to the productions, and this we do through this story, the story of village Palampur, which is a hypothetical village. Okay, so dear students, farming is the main activity in Palampur. That means most of people depends on farming for earning their livelihoods, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are also carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources, like for example natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. These all are needed for the activities of productions. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. Okay dear students, now let's start with an introduction. So dear students, Palampur is a well connected with the neighboring village and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers away from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sahapur. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, bogies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery, gur and other commodities, to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractors and trucks. These can be seen on the roads of Palampur. Dear students, this village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in a village. Their houses, some of them quite large, and are made of brick with cement plastering. The scheduled caste Dalits comprises 1/3 of the populations and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. Most of houses have electric connections. Electricity powers all the tube wells in the fields, and it is used in various types of small business. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. So dear students, ये पालमपुर गांव की जो कहानी है, इसके माध्यम से आप सभी लोगों को उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है, और ऐसा हम जो है एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं. सो पालमपुर इज एन इमेजिनरी, दैट मीन्स हाइपोथेटिकल विलेज. पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transports, etc. are also carried out on a limited scale. तो पालमपुर की जो मुख्य क्रिया है
वह क्या है, खेती है। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशंस, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। सो दीज ऑल आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज which are also carried out in the village Palampur on a limited scale. So there are two kinds of activities, farming activities and non-farming activities which we do for earn our livelihood. Farming is the main activities over there in village Palampur. Most of the peoples depend on farming for earning their livelihoods. Some non-farming activities like manufacturing, dairy, transports, etc. are also carried out on a limited scale. इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो वी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, डियर स्टूडेंट्स, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज वी नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एटसेट्रा। तो उत्पादन की क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, ह्यूमन मेड आइटम्स, मानव प्रयास, ह्यूमन एफर्ट्स, मुद्रा, मनी आदि एटसेट्रा। पालमपुर की कहानी से हमें यह पता चलेगा, हमें यह विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। सो विद दिस स्टोरी और व्हेन वी विल गो थ्रू दिस स्टोरी पालमपुर, we will learn how various resources are combined to produce the desired goods and services in the village. Parichय, introductions. Dear students, Palampur is well connected with the neighboring villages and towns. पालमपुर आस पास पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। रायगंज is a big village and is 3 kilometers away, 3 kilometers from the Palampur. So प्यारे विद्यार्थियों, रायगंज एक बहुत बड़ा गांव है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। सो ऑल वेदर रोड यानी कि पक्की जो है सड़क है जो कि पालमपुर से लेकर जो है बड़े गांव रायगंज तक जो है जाती है। और यह सड़क जो है पालमपुर को जो है रायगंज और इसके निकट स्थित निकट कस्बे शाहपुर से जो है जोड़ने का काम करती है। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजुअल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर। पालमपुर के सड़क पर जो है रास्ते पर मार्ग पर हमें विभिन्न प्रकार के यातायात के संसाधन देखने को मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। ऑन दिस रोड्स मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम बुलोक कार्ट्स, टांगास, bogies, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with the jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractors and trucks. This village has about 450 families. इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में जो है अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। 80 upper caste families own the majority of the land in the village. Their houses, some of them quite large and are made of brick with the cement plastering. और ये जो 80 परिवार हैं जिनके पास अपनी खुद की जो है भूमि है, ये उच्च जाति के हैं। इनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंटें और सीमेंट के बने हुए हैं। और जो अनुसूचित जनजाति है, द शेड्यूल कास्ट दलित्स कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशंस। वे पालमपुर के आबादी यानी कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के
और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। द शेड्यूल कास्ट दलित कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, और छोटे घरों में रहते हैं। सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्टार, जिसमें से जो कुछ जो है मिट्टी और जो है फूस के बने हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो अधिकांश के घरों में बिजली है। खेती में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, Palampur has 2 primary school and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. तो एक प्राइमरी डिस्पेंसरी है जहाँ पर रोगियों का उपचार किया जाता है। The descriptions above shows that Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigations, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. तो उपर्युक्त जो विवरण से स्पष्ट होता है, जो हमने अभी जो है हम लोगों ने जो है पढ़ा, हम लोगों ने जाना कि पालमपुर में सड़कें, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त सुविधा है। इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से आप कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज will take us through the different types of productions activities in the village. In village across India, farming is the main productions activity. The other productions activities referred to as non-farming activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities, farming and non-farming activities, after learning a few general things about the productions. So dear students, पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और इस कहानी से हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं नॉन फार्मिंग्स कहा गया है, लघु विनिर्माण, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, परिवहन, दुकानदारी, शॉपकीपिंग आदि जो है शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर इस अध्याय में विचार करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, now organizations of productions. Dear students, उत्पादन का संगठन। In this para we will study about what are the major requirement for the productions. The aim of productions is to produce the goods and services that we want. प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। There are 4 requirements for productions of goods and services. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। What are these? Let's know. Dear students, the first requirement of productions is land and other natural resources such as वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। पहली उत्पादन की मूलभूत जो है आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन,
खनिज. So this is the first requirement of productions. What is the first requirement of productions? Land. Land is the first requirement of productions and other natural resources such as water, forest and minerals. The second requirement is labor. और उत्पादन की जो दूसरी आवश्यकता जो है क्या है? श्रम की आवश्यकता है, लेबर की. तो दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे. The second requirement of productions is labor, people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks, and other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for productions. So dear students, here we came to know about that. The second requirement of productions is the labor, one who will do the work. तो दूसरी जो आवश्यकता है उत्पादन की वह श्रम है, अर्थात जो लोग काम करेंगे. कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है. दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है. प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल. उत्पादन की तीसरी जो आवश्यकता है फिजिकल कैपिटल की, यानी कि भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है उत्पादन की प्रक्रिया में. अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की जो आगत है या कई तरह की जो हमें जरूरत पड़ती है उसे भौतिक पूंजी कहते हैं. क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं या भौतिक पूंजी क्या है? So dear students, the third requirement of production is the physical capital. The variety of inputs required at every stage during the productions is called physical capital. What are the items that come under the physical capitals? Physical capitals के अंतर्गत क्या क्या आता है? Let you know, dear students, there are two types of physical capital. Physical capital दो तरह के होते हैं. भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है. The first one is the fixed capital and second is the working capital. So what is the fixed capital? Fixed capital क्या है? जिसे हम लोग जो है अस्थाई पूंजी कहते हैं. औजार, मशीन, भवन यह अस्थाई पूंजी के अंतर्गत आता है. तो टूल, मशीन्स, बिल्डिंग, रेंज are the example of fixed capital. Tools and machines range from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. Tools, machine, building can be used in productions over many years and are called fixed capital. So यहाँ पर विद्यार्थियों औजार, मशीन, भवन यह जो है अस्थाई पूंजी फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत आता है. औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं. औजार, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है. तो इनका कई वर्षों तक उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होता है, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इन्हें फिक्स्ड कैपिटल अस्थाई पूंजी कहते हैं. इन्हें हमें बार बार जो है खरीदना नहीं पड़ता है. सेकेंड इज द वर्किंग कैपिटल. सो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? डियर स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल कम्स अंडर द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत ही वर्किंग कैपिटल भी आता है. तो वर्किंग कैपिटल मतलब होता है, हिंदी में बोला जाता है कार्यशील पूंजी. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर द एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल. डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शंस रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चे माल की आवश्यकता होती है. फॉर एग्जांपल, एज द yarn used by the weaver and the clay used by the potter. उदाहरण स्वरूप बुनकर जो होते हैं
वे सूत का प्रयोग करते हैं और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी कच्चे माल का जो है उदाहरण है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहते हैं। So dear students, some money is always required during the productions to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. Unlike tools, machine and building, these are used up in a productions. तो ये जो है क्या है, वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है। औजार, मशीन तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है एंड मनी इन हैंड है, इसे हमें इसका जो है प्रयोग जो है पड़ता है बराबर प्रयोग पड़ता है। सो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर वर्किंग कैपिटल। Productions requires a variety of raw materials such as yarn used by the weaver and clay used by the potter. Also, some money is always required during the productions to make payments. So, the things which are always required in productions activities are come under working capital. The example of working capitals are raw materials and money in hand. Now, dear students, the fourth requirement of productions. There is fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. तो एक चौथी जो आवश्यकता उत्पादन की है वो क्या है, आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में उत्पादन की जो आवश्यकता है चौथी, वो है आपका नॉलेज एंड इंटरप्राइज, यानी कि जो है ज्ञान होना चाहिए और उद्यम। नॉलेज मतलब वो ज्ञान, इंटरप्राइज मतलब उद्यम। तो चौथी आवश्यकता भी होती है उत्पादन के लिए, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आजकल इसे जो है मानव पूंजी कहा जाता है। These days is called human capital. इसे जो है मानव पूंजी कहा जाता है। We shall learn more about the human capital in the next chapter. हम लोग अगले अध्याय में जो है ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। Dear students, in the picture 1.2, identify the land, labor and fixed capital used in productions, which you can see in your books in pictures 1.2. So every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factor of productions. तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन भूमि, लैंड, श्रम, लेबर और पूंजी कैपिटल को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस कहा जाता है। पालमपुर की जो कहानी है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। जब हम पालमपुर की जो है कहानी जो है पढ़ेंगे, तो इसके क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक जानेंगे, सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। सो वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। So dear students, now the topic farming in Palampur. Okay dear students. Farming in Palampur. हम लोग पढ़ेंगे क्या, फार्मिंग इन पालमपुर। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंड इज फिक्स्ड। लैंड इज
भूमि क्या है? स्थायी है, स्थिर है। सो डियर स्टूडेंट्स, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में जो है मुख्य जो उत्पादन की जो क्रिया है वो क्या है? खेती है। काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। सो 75% ऑफ द पीपल्स हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स। वे जो है किसान हो सकते हैं या फिर कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों में दे द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल the well-being of these people is closely related to the productions on the farm। इनके लोगों का जो जीवन है या जो हित है वो खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। But remember that there is a basic constant in raising from products in raising farm productions। लेकिन याद रखने की जो है बात है कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई भी है। So what are the basic constraint in raising farm productions? Let's know about it. Dear students, land area under cultivations is practically fixed। यानी कि खेतों में प्रयुक्त जो भूमि का क्षेत्र है वह वस्तुतः क्या है? स्थिर होता है। पालमपुर, since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under the cultivations। By then some of the wasteland in the village had been converted to the cultivable lands। प्यारे विद्यार्थियों, 1960 पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशंस इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशंस। बाय देन some of the wastelands in the village had been converted to the cultivable land। There exists no further scope to increase farm productions by bringing new land under cultivation। Now we will discuss about the second points of farming in Palampur। Second one is there a way? Second, is there a way one can grow more from the same land? One can grow more from the same land? Okay, dear students, in the kind of crops grown